हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर जो है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है जो एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हैं और जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर आपके समक्ष क्वेश्चन पेपर प्रस्तुत करेगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगी और हर एक सब्जेक्ट का होगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे जो एग्जाम में आएगा। देखिए, इन क्वेश्चनों को करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं दूसरे व्यक्तियों की तरह ये नहीं कहूँगा कि 100% आएगा, 100% आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, जो समझेंगे, वो ज़रूर ये कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए जो मुझे लगा महत्वपूर्ण है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और इसको अगर आप समझ लेते हो तो ये एग्ज़ाम के लिए भी महत्व रखेगा। और यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने सारे सब्जेक्टों को लेके आया है क्वेश्चन पेपर, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये सब तब देख पाओगे जब आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। और ये देखिए, क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखेगा एग्जाम व्यू से, तो ये आपके लिए ज़रूरी भी है। चलिए देखते हैं आज हमारे समक्ष कौन सा क्वेश्चन पेपर आया है। हियर क्वेश्चन डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10th NIS board here. That's important question of social science. You know that question on your screen, the question here, a principle related to the Gandhian thought here. That's important, Gandhian thought. That's important for the exam point of view here. The first thought on your screen, the non-violence. The non-violence means to the ahimsa. Ahimsa, there is a non-violence. The Gandhi is a unwavering commitment to be non-violence. Gandhi has unwavering is a commitment to be non-violence and goes beyond physical harm. It extends to be avoiding emotional, psychological, and societal violence here. It is emphasis resolving conflict through the dialogues and understanding rather than the resorting to aggression. That's important here. Non-violence, there is a principle of Gandhian thought here. And the next here, truthfulness, it means to the satya. Second here, truthfulness, satya. The Gandhi's thought is the most important, truthfulness. Truthfulness from to be a bedrock of Gandhian's philosophy, and embracing honesty and transparency in our personal and public lives can help build up trust and promote to the genius dialogueness. That's important. Truthfulness means satya. And the next here, simplicity. The simplicity is the most important thought for the Gandhian here. The Gandhi is a advocacy for the simplicity and remind us to live with the favor of possessions and a smaller ecological footprint, and reducing stress and promoting meaningful experience. That's important here. The Gandhi's thought is a simplicity. And the next here, the self-reliance. Self-reliance means Swaraj. Self-reliance is the most important thought for the Gandhian here. The Gandhis are accompanied to the self-reliance as mean to the empowerment, and it is encouraged to us to take a charge over own destinies and be a resilient in the face of challenges. That's important. The self-reliance mean to Swaraj. Gandhi is the most important principle here. The next and the last here, compassion and service means seva. That's the most important principle of Gandhian thought here. That's here, compassion and service to be others lies at the heart of Gandhi's as a teaching. And embracing these principles can foster an empathy and unity. That's important principle for the Gandhian thought here. That's important for the exam point of view here.
यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है जो NIS बोर्ड से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने सोशल साइंस लिया है यानी सामाजिक अध्ययन, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उनके लिए क्वेश्चन बनता है। और हमारे समक्ष यहाँ पर स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कि गांधीवादी विचार से संबंधित सिद्धांत, गांधीवादी विचार से संबंधित कुछ सिद्धांतों को हमने एनालाइज करना है। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत पहली गांधी जी जो विचारधारा रखते थे वो थे अहिंसा। अहिंसा काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर शब्द है। कहते अहिंसा के प्रति गांधी की अटूट प्रतिबद्धता शारीरिक क्षति से परे है और इसका विस्तार भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हिंसा से बचने तक है। और ये आक्रामकता का सहारा लेने के बजाय बातचीत और समझ के माध्यम से जो है संघर्षों को हल करने का जोर देता है। देखा जाए तो महात्मा गांधी ने जो बहुत बड़ा हमारे देश में आंदोलन चलाए और उन्होंने जो है अहिंसा का सहायता किया और अहिंसा का जो है सहारा भी लिया और इसी बेस पे वो आगे भी बढ़े, क्योंकि वो हमेशा यही मानते थे कि किसी को क्षति पहुंचा के हम अपनी बातें नहीं मनवा सकते। अगर हम उसी बात को बैठ के समझ के अगर हम उसको एनालाइज करके समझें तो वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। कहते हैं समाज को हिंसा की आग में धकेल देना वो कदाचित उचित नहीं है, जैसे आज के समय राजनीतिक नेता सब करते हैं। देखते ही रहते हो आए दिन सांप्रदायिक दंगा फसाद चलती रहती है। तो महात्मा गांधी इस बात की विचारधारा नहीं रखते थे। वो हमेशा हर बात के सलूशन के लिए बैठ के भी जो है हल निकाला जा सकता है। आप देखते ही हो कि लोग किस प्रकार से जो है हिंसा का सहारा लेते हैं और बाद में जो है बात करके ही हल निकलता है। तो हिंसा किस लिए हम करें? अगर हमारी बात से ही बात निकल जाए, समस्या कोई भी समस्या का हल निकल जाए, तो इतनी बड़ी जो है सांप्रदायिक दंगा फसाद करने की क्या ज़रूरत है और भारत को जलाने की क्या ज़रूरत है। इसी बात को जो है महात्मा गांधी जी समर्थन करते थे कि हमेशा अहिंसा करना चाहिए, कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। अपने विचारों को भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक तौर पे जो है बैठ के सलूशन करने की आवश्यकता होनी चाहिए। उसके पश्चात गांधी जी का जो दूसरा विचार था वो था सत्यता, यानी सत्य। सत्यता गांधीवादी दर्शन का एक आधार माना जा सकता है और हमारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और पारदर्शिता अपनाने से विश्वास बनने और वास्तविक संवाद को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। देखिए आज देखा जाए तो हर व्यक्ति झूठ बोल के ही आगे बढ़ता है और झूठ के ही खेती करते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। महात्मा गांधी जी का जो विचारधारा था वो सत्यता पर आधारित थी। कहते हैं अगर आप सत्य बोलते हो तो सत्य सुनने वालों को तकलीफ तो होती है, लेकिन सत्य कभी मिटती नहीं है। सत्य कभी झूठा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी आप कुछ करो तो हमेशा सत्य का सहारा लो, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, इससे कभी मत सोचो। कहते हैं सत्य हमेशा सत्य ही रहती है, सत्य को कभी झुठला नहीं सकते हैं। आज बेशक लिए आपकी बातें दुनिया न माने न समझे, लेकिन एक समय आएगा जब उनको इस सत्य को जो है अपनाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर गांधी जी इस बात पे जोर देते थे कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और पारदर्शिता रखना बहुत ही ज़रूरी है और ये पारदर्शिता काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। उसके पश्चात गांधी जी सादगी, सरलता को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते थे, यानी सिंप्लिसिटी पर वो बहुत जोर देते थे। इंसानों को इतनी दिखावा नहीं करनी चाहिए। आपने देखा भी होगा कि हमारे देश के बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो इतने करोड़ करोड़ के कपड़े पहनते हैं जिनके अखबारों में सुर्खियां बन जाती हैं। तो महात्मा गांधी जी का विचारधारा यही था कि ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिखावा करने से आप सर्वश्रेष्ठ नहीं बन जाओगे। हमारे ही देश में ऐसी कई घटना घटी है जो कहते हैं अखबार का फ्रंट पेज पे न्यूज़ बन गई थी। शादी के लिए गांधी जी की वकालत हमें कम संपत्ति और छोटे पारिस्थितिक पद चिन्ह के साथ रहने, तनाव कम करने और समर्थक अनुभवों को बढ़ावा देने की याद दिलाती है, यानी हमेशा हमें सरल रहना चाहिए। कहते हैं जो चीज़ आपके पास है उसी में आप जो भरोसा रखो, उस पर ही विश्वास रखो। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसकी लालसा न करो। अगर उसकी लालसा करना है तो मेहनत करो, परिश्रम करो,
लेकिन कभी भी गलत रास्तों का जो है अनुसरण न करो, क्योंकि सरलता काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और सादगी देखा जाए तो ये आपके लिए जीवन के लिए भी और आने वाले भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए महात्मा गांधी जी जो है वो सादगी और सरलता पर जो है काफ़ी ध्यान देने की बात करते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आत्मनिर्भरता यानी स्वराज। देखा जाए तो महात्मा गांधी जी जो थे वो आत्मनिर्भरता की बात करते थे। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि जो हमारे समक्ष संसाधन है हम उसी का उपयोग जो है भली भांति और विवेकपूर्ण करें, जिससे हम आत्मनिर्भर हो सकें। कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर तब होता है जब वो स्वयं के लिए जो है काम अर्जित कर लेता है। लेकिन आज देखिए हम सब जो है सरकार की तरफ टकटकी लगा के देखते रहते हैं कि सरकार जब हमें सरकारी नौकरी देगी तो हम करेंगे, तो ऐसे में भविष्य आगे नहीं बढ़ सकता है। गांधी जी ने सशक्तिकरण के साधन के रूप में आत्मनिर्भरता की वकालत की है और यह हमें अपनी स्थिति को जिम्मेदारी स्वयं लेने और चुनौती का सामना करने के लिए ललित बनाने के लिए जो है काफ़ी प्रोत्साहित करता है। कहते हैं जो इंसान आत्मनिर्भर हो जाता है उसे दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यही महत्वपूर्ण है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर सरकार को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि लोगों को सही जॉब सही रोजगारी की व्यवस्था करे, जिससे ये आत्मनिर्भर हो सकें, किसी दूसरे पर आश्रित न रहें। तो गांधी जी का यही विचारधारा था और सशक्तिकरण के आधार पर उन्होंने आत्मनिर्भरता की सदैव वकालत की। देखा जाए तो उनके अंतिम विचारधारा यही था कि करुणा और सेवा। कहते हैं तो आपने सुना ही होगा कि नर सेवा नारायण सेवा के समान होता है। इसलिए महात्मा गांधी जी सेवा को बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधाराओं में से एक मानते हैं। कहते हैं दूसरे के प्रति करुणा और सेवा गांधी की शिक्षाओं के केंद्र बिंदु थे। ये देखा जाए तो करुणा और सेवा गांधी जी का महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था और इन सिद्धांतों को अपनाने से सहानुभूति और एकता को बढ़ावा मिलती है और इससे देश में भी काफ़ी शांति मिलती है। तो इसी बात को देखा जाए तो महात्मा गांधी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातों पर अपनी सिद्धांतों को रूप में यहाँ पर दर्शाया जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम सभी भारतवासियों को इनकी विचारधाराओं पर आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं अच्छी बातें सब व्यक्तियों को अनुसरण करने की आवश्यकता है और गलत बातें कभी भी अनुसरण न करें, यही महत्वपूर्ण बात बन जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रूस पे जो है प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। कहते हैं शेयर करने वाले सबसे बड़ा होता है और आपको बड़ा बनना है। कहते हैं विचारों में बड़ा बनिए, कर्मों से बड़ा बनिए। तो ये महत्वपूर्ण रहता है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो दोस्तों ये तो आप समझते ही हो कि इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो ये आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचिएगा कि मैं क्यों तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करूँ, तो आपको बता दूँ यहाँ पर 6वीं कक्षा से लेके जो है MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है और सारे CBSE हो NIU से हर एक बोर्ड का यहाँ पर वीडियो सही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। इसलिए भी सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।